Hi guys, Anubhav here. My name is Anubhav Mishra and I'm a product manager. And I keep observing businesses, companies, products and जो भी मुझे insights बहुत useful लगते हैं. So I keep making a note of them. And from a long time, I have been observing Zomato and Blinkit, and they are crazy. Okay, really, they are crazy, and they're also one of the favorite products. You can say the ideal products फॉर प्रोडक्ट मैनेजर. मतलब जितनी भी केस स्टडी या एग्जाम्पल्स होते हैं, इट्स मोस्टली गिवन बाय जोमेटो एंड ब्लिंकिट. दीज कंपनीज स्पेशली स्विगी और ऊबर, ये सारी हो गई. सो ब्लिंकिट एंड जोमेटो इज़ पर्सनली माई फेवरेट एंड आई हैव बीन ऑब्जर्विंग देम फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम. सो कुछ एज अ पी एम कुछ इंसाइट्स मैं शेयर करने वाला हूँ जोमेटो के लिए एंड हाउ दे आर किलिंग एंड डिस्टर्प्टिंग द मार्केट. So let's start without wasting much time. So just to add on, so I'm a PM, so I'll share those insights that is relevant to PM. So थोड़ा सा बहुत ही डायरेक्ट और टू द पॉइंट होने वाला है. सो वोंट बी शेयरिंग एनी हिस्ट्री, कैसे शुरू हुआ कैसे क्या. It will be very direct video. So that you can understand, if you want to invest in Zomato, you want to understand their business model, how they are cracking it, what is working for them and what is not working for everybody else. So I'll be covering from that. So financial से शुरू करते हैं. वेरी बेसिक. सो जब जोमेटो ने स्विगी का एक्विजिशन अनाउंस किया, सो जोमेटो खुद उतनी समय $5 बिलियन के वैल्यूएशन पे था और -1,222 के लॉस पे था. ये ईयर ऑन ईयर लॉस हो रहा था जोमेटो का. एंड ब्लिंकिट इटसेल्फ, उसकी वैल्यूएशन बहुत कम थी एंड इट वाज लूजिंग ₹150 इन एवरी ऑर्डर. सो बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे जोमेटो के इस डिसीजन को एंड एवरीबडी वाज सेइंग दैट इट्स यूजलेस, बैड डील, जोमेटो खुद स्ट्रगल कर रहा है, व्हाई इज इट आफ्टर ब्लिंकिट, what not, people have said everything. And by the way, Zomato got listed and uska share price from 130 or 140 something, it went down up till ₹45, I guess. But time is the king, and now you will see the current valuation of Zomato, which is 20 billion, and Blinkit, which is now 8 billion. और दोनों के बीच का अगर मार्जिन डिफरेंस देखेंगे, दैट हैज़ ऑल्सो ड्रास्टिकली कवर्ड अप. एंड इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि जोमेटो यहाँ पे लॉस मेकिंग था, नाउ इट इज़ प्रॉफिटेबल. एंड ब्लिंकिट जो कि -150 पर ऑर्डर लूज कर रहा था, इट वॉज बर्निंग दैट मच ऑफ अमाउंट, नाउ इट्स जस्ट बर्निंग ₹15 per order. So the interesting question is, how were they able to manage this, and what went good, what went right, and what went wrong for them? So out of all the things that went right and went bad for them, the two very important things that I would like to cover for now is frequency of order and average order value. So to reduce your burn rate, just like Blinkit did here, so to reduce your burn rate, there are two very important things. One is your average order value size should be very much high, so you'll be able to reduce this. And second is frequency of order. The more frequently people will order, the better it is for Blinkit. So let's discuss AOV. Now what is AOV? AOV is simply average order value, which is like once when you order or you save items in your cart, so you save a stack of items. Okay, you necessarily may not buy vegetables every time. You might add like not just one vegetable, tomato, potato, some dhaniyas and other vegetables, bindi and all, everything. So the average value of all the stack of order is only called average order value. So how was Blinkit able to crack this AOV, and what is the AOV of other players in the market? We'll share that as well. What is AOV for Flipkart, Amazon and every other brand operating in quick commerce and e-commerce space. So let's start for AOV. सो ब्लिंकिट वेरी सून अंडरस्टूड. सो सबको पता है कि ब्लिंकिट का पहले नाम ग्रोफर्स था एंड दे चेंज इट टू ब्लिंकिट. ओके, सो दे वेरी सून अंडरस्टूड कि ग्रोसरी अगर हम सिर्फ सेल करेंगे, सो विल नॉट बी एबल टू स्केल व्हेन इट कम्स टू AOV, क्योंकि वेजिटेबल्स पे कितना ही AOV बढ़ा लेंगे. सो दैट इज़ वेयर दे प्लान टू रीब्रांड. और रीब्रांडिंग एक completely डिफरेंट टॉपिक है, विच टू सम एक्सटेंट आई विल कवर लेटर इन द वीडियो. So when they changed rebranded Blinkit, just 10 minutes delivery. So AOV बढ़ाने के लिए they transitioned from just vegetable to they started onboarding electronic products. Why electronic products? क्योंकि Flipkart, Amazon और बाकी जितने भी e-commerce businesses हैं, it is found क्योंकि उनके AOV value इसलिए ज़्यादा होती है because they are dealing in higher ticket size product.
जिसमें मेजरली जो शेयर होता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हेल्प यू टू इंक्रीज योर एओवी। सो रिसेंटली यू ऑल माइट हैव सीन कि ब्लिंकिट ने PS5 को ऑनबोर्ड किया। अभी कल का ये स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया लिंक्डइन पे, वेर इन दे ऑनबोर्डेड लेंसकार्ट, boat. So now people have started ordering electronic goods, which eventually has helped Blinkit to raise their average order value. So let's see बाकी players का average order value क्या है. But before that, just to give you some insights on other data, monthly active users of Blinkit, insane number, 15 million, which is continuously growing. Average order value, this is 607. But a very interesting thing, अभी इसका comparison करेंगे and we'll see how are other brands doing like Zepto and every other brand in the market. Then average SKU per user per month, average SKU stock keeping unit, कि किसी एक user के लिए at least कितने items होते हैं उनके डेटा में, विच इज़ 18, वीकली रिटेंशन रेट इज़ 50% एंड ऐप ओपन टू ऑर्डर थ्रू रेट। मतलब जब भी कोई ब्लिंकिट का ऐप खोलता है तो हाउ लाइकली दे आर टू ऑर्डर, विच इज़ 40%, विच इज़ एन इनसेन नंबर। मतलब हर 100 बंदा जो ब्लिंकिट ऐप खोल रहा है उसमें से 40 लोग ऑर्डर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर व्हेन कंपेयर्ड। सो AOV देखते हैं बाकी कंपनीज का। सो फ्लिपकार्ट का 1000 से 1500 है, विच गोज अप व्हेन इट्स सेल सीजन। अमेजोन का भी 1000 से 1500। मीशो जो कि एक ई-कॉमर्स बिजनेस है उसका 500 है, जेप्टो 400, इंस्टामार्ट 460 एंड ब्लिंकिट स्टैंड्स एज अ लीडर 607, विच इज़ एन इनसेन नंबर। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार फ्लिपकार्ट अमेजोन से तो बहुत कम है। देखो फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मीशो आर ई-कॉमर्स बिजनेसेस। जेप्टो, इंस्टामार्ट, ब्लिंकिट, दे आर क्विक कॉमर्स। सो ई कॉमर्स के लिए इट्स स्टिल गुड नंबर कि वो 1000 क्रॉस कर सकते हैं, बट क्विक कॉमर्स के लिए बहुत ही इतना ईजिली पॉसिबल नहीं है। मतलब एक डिजिट भी मूव करना इज द बिग डील फॉर दिस कंपनीज। सो ब्लिंकिट क्रैक्ड इट बाय ऑनबोर्डिंग राइट प्लेयर्स इन द मार्केट, स्पेशली the electronic goods, and also a very good thing about Blinkit is कि उनका एक मेजर शेयर कॉस्मेटिक्स को जाता है, ठीक है, बिकॉज एवरीबडी एल्स इज डीलिंग इन ग्रोसरीज एंड ग्रोसरी का जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। यू हैव टू रिप्लेनिश दोज प्रोडक्ट्स क्वाइट फ्रीक्वेंट, बट ब्लिंकिट के केस में ये नहीं है, विच इज़ एन लेवरेज फॉर ब्लिंकिट। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ नाउ, वाई अब जोमेटो का शेयर इज सर्जिंग वेरी हाई। सो उसके पीछे एक और रीज़न है। दीपिंदर, जो कि जब कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट में, सो उन्होंने जो जो प्रोमिसेस किए थे ही इज़ फुलफिलिंग दोज। मतलब जोमेटो का लॉस वॉज समवेयर अबव 2000 करोड़ और समथिंग 2020 के क्वार्टर में, ईयर में, बट यू सी उन्होंने प्रॉमिस किया था कि इस क्वार्टर से विल हिट प्रॉफिटेबिलिटी, और प्रॉफिटेबिलिटी हिट किया जोमेटो ने 2 करोड़ 36 करोड़ एंड देन इन नेक्स्ट क्वार्टर 138 करोड़। सो वो ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ना, दैट इज़ हेल्पिंग जोमेटो का शेयर। मुझे याद है 140-130 के आसपास था शेयर, ड्रॉप टू 45, अगेन वेंट अप टू 190। सो वो क्यों जा रहा है? नॉट बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग फंडामेंटली गुड, बट दे आर ऑल्सो फुलफिलिंग द प्रोमिसेस मेड टू द रिटेल इन्वेस्टर्स एंड एवरीबडी एल्स। एंड नेक्स्ट बिग थिंग इज, अभी दीपिंदर ने बोला कि ब्लिंकिट विल बी लार्जर देन जोमेटो, एंड अगर ऐसा होता है, जिस दिन ब्लिंकिट प्रॉफिटेबिलिटी हिट करेगा, आई एम डैम श्योर जोमेटो अभी 190 या 200 पे है, इट विल गो अप टू 500, 800, 1000 इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन, मे बी 5 years, 6 years, 7 years down the line. So it's a very good entry point if somebody wants to, like, I'm not giving you an investment advice, I'm just telling you कि how they are cracking their numbers. So अगर आप जोमेटो का रिटर्न भी देखेंगे तो 5 years रिटर्न इज जस्ट 69%, जो कि एक टाइम पे बहुत ज़्यादा चला गया था, बट लास्ट वन ईयर में दे हैव कंटिन्यूसली केप्ट ग्रोइंग, विच इज़ लाइक 260% रिटर्न। एंड ऑल्सो वॉट एल्स हेल्प देम इज द मार्केटिंग, ऑफ कोर्स। एक तो जो रीब्रांडिंग उन्होंने किया ग्रोफर्स से ब्लिंकिट, दैट हेल्प देम वेरी गुड, एंड देन the marketing campaigns that they did. So there are basically 3 types of marketing strategies: ATL, BTL, TTL. ATL is above the line, BTL is below the line, and TTL is through the line. अब तीनों का मतलब क्या होता है? जैसे ये होर्डिंग्स लगी है ना, now these are part of ATL, above the line, जिसमें कोई टारगेटिंग नहीं होती है,
सबको दिखा दिया गया, ब्रांड बिल्डिंग में हेल्प करता है, पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग द ब्रांड, बट इट मे नॉट नेसेसरली हेल्प इन डायरेक्ट सेल्स ऑफ द कंपनी. फिर होता है BTL, बिलो द लाइन, जिसमें डायरेक्ट टारगेटिंग होती है, जहाँ पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग वगैरह आ जाती है. लेट्स से कि यू वेंट एंड सर्च फॉर सम कॉस्मेटिक और सम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स. आपने एक बार तो सर्च कर लिया, बट आपको बार बार फिर एड्स दिखाने लगा. दैट इज़ द राइट एग्जाम्पल ऑफ BTL. And TTL is through the line, balance of ATL and BTL. So they have been able to crack these ATL BTL, all three types of marketing very well. एंड मतलब अगर आप जोमेटो, स्विगी का या फिर ब्लिंकिट का अगर आप सोशल मीडिया हैंडल वगैरह भी देखेंगे, दे जस्ट नेल इट. वो कुछ ना कुछ ह्यूमर या कुछ ना कुछ करते रहते हैं. सो अगेन दिस इज़ अ वेरी डीप टॉपिक, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी इनका. इफ विल गेट इन टू दिस, सो इट विल गो लॉन्ग, सो वी वोंट कवर इट फॉर नाउ. बट या, इफ़ यू लेट मी नो इन द कॉमेंट इफ़ यू वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट. मैं सिर्फ फंडामेंटल जो कुछ सेक्सी नंबर्स हैं इनके, दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू शेयर. बट द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ कि if Blinkit is killing the market, Zomato is doing so awesome, so where are the big daddies in the market, like Amazon, Flipkart came up with its quick commerce model, but they dropped it. But now again there are rumors in the market that they are again coming up with something called Flipkart Quick. अब वो नाम का maybe they might change or may continue with the same name, but yeah, they are also coming up in the market with quick commerce space. So बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है देखने में कि क्या करते हैं फ्लिपकार्ट और अमेजोन, क्योंकि वो भी बहुत बड़े प्लेयर्स हैं. सो हाउ ब्लिंकिट इज़ गोइंग टू सस्टेन, उनको बीट कैसे करने वाला है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज कैसे लेने वाला है ब्लिंकिट. दैट इज़ गोइंग टू बी रियली इंटरेस्टिंग टू सी इन द मार्केट. एंड एट द सेम टाइम रिलायंस रिटेल्स वगैरह भी कैसे इस स्पेस को टैप करने वाले हैं. दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू सी. Kudos to Dipinder and Albinder. They're just amazing people out there in the market. Like they are inspiration for maybe potential startup founders like us and everybody else in the market. I really admire them and I've been observing them from a long time and they really inspire me. So वो इंस्पिरेशन शायद आज इतना ज़्यादा हिट हो गया कि सो आई हैड टू एक्चुअली मेक दिस वीडियो. सो या, kudos and thanks to both of you for continuously inspiring potential entrepreneurs and founders like us. Thank you so much again and again. And yeah, guys, if you have any doubt or any question, anything, let me know in the comment section. I'll try to answer those. If like, I'll do my research and get you on that. So thank you, see you, bye bye.